एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ।
ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ,
ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹਿ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਇ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ।
ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ, ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹਿ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਨਾ ਨਿਤ ਪੁੰਜੀਐ। ਤਿੰਨ ਨਾ ਨਿਤ ਪੁੰਜੀਐ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ।
ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Re ga ma ni dha ma pa, re ga ma ni dha ma pa, ni dha. जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, 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 काले लिख ना लेख, काले लिख ना जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, जे तू अकल लतीफ काले लिख ना
फरीदा फरीदा जो ते मारन मुकिया तिना ना मारे कुम जो ते मारन मुकिया तिना ना मारे जो ते मारन मुकिया तिना ना मारे कुम जो ते मारन मुकिया तिना ना मारे फरीदा फरीदा जो ते मुकिया तिना ना आप नड़े कर जाइए पैर तिना दिल पैर तिना दिल जो ते मारन मुकिया तिना ना मारे जो ते मारन मुकिया तिना ना मारे आपनड़े कर जाइए पैर तिना दे आप नड़े कर जाइए पैर तिना दे आप नड़े कर जाइए पैर तिना दे आप नड़े कर जाइए पैर तिना दे जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लिख जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लिख जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लिख जे तू अकल काले लिख ना लिख काले लिख ना लिख काले लिख ना लिख
काले लिखना लेख, काले लिखना लेख, काले लिखना लेख, काले लिखना लेख, जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख, जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सबको कल का टॉपिक याद हो तो कल एक विशेष टॉपिक लिया गया था जिसमें दो घटनाएं ऐसी विचित्र आई थी, जिसमें उस जवान लड़के और उस पठान अब्दुल गफार खान कुछ दिनों की भक्ति से इनके मन की मैल उतर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पर आकर रुकने और विचार करने की बात है। बहुत ही अनमोल टॉपिक है जो आज का दास लेने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता था कि वो पठान पूरा जीवन पापों से भरा हुआ था। उस लड़के के मन में भी पाप था, काम वासना थी, पर कुछ ही दिनों की भक्ति से, 4 दिनों की भक्ति, 13 दिनों की, 11 दिनों की भक्ति से माने साफ हो गया, मैल उतर गई। हमें कई साल हो गए हैं, ये पॉइंट कोई छोटा नहीं। यहाँ पर विचार करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मन की मैल नहीं उतर रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ने इसके बारे में बहुत विचार किया और आखिर में एक निष्कर्ष पर पहुंचा जो महापुरुष वचन किया करते थे। मानो इतने दिनों से हम नाम की महिमा सुनते आ रहे हैं, नाम जपना है, नाम जपना है, नाम जपना है। कोई नाम जपता भी हो, गुरु साहिब जी अमृत लोटने की सेवा भी लेते हो, नितनेम भी हो, सब कुछ हो, फिर भी मन की मैल नहीं उतर रही है, तो कौन सी गलती हो रही है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ध्यान से विचार करने वाली बात है साथ संगत। दुकान पर एक दिन ग्राहक ना आए, चिंता हो जाती कि क्या होगा। बच्चा फेल हो जाए, 1 साल बर्बाद हो जाए, चिंता हो जाती है। यहाँ पर हमारा जन्म व्यर्थ जा रहा है, चिंता होना ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा जन्म व्यर्थ जा रहा है, सब कुछ करते हुए भी मन की मैल नहीं उतर रही, तो कहीं तो कोई भूल हो रही है ना, वो भी बहुत बड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर दवाई देता है, दवाई देने के बाद एक बात अक्सर कहता है कि परहेज जरूर करना। सर्दी है
ठंडा मत खाना, नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब अमृत वेला है नाम, नित्य नेम है नाम, हम दवाई खा रहे हैं नाम की, पर यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दवाई हम सब खा रहे हैं, गुरु नानक पातशाह हमें दवाई दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, गुरु की कृपा है उनके, डॉक्टर दवाई दे रहा है। जो नहीं खा रहे उनकी बात अलग है, वो टॉपिक अलग है। जो दवाई खा रहे हैं पर गलती कहाँ कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। और आज जो शब्द दास ने लिया है, जो भगत फरीद जी का, गुरु साहब जी हमें समझाना चाहते हैं आज कि ये परहेज जब तक तू नहीं करेगा, सब कुछ किया कराया गवा लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परहेजों में कई परहेजों में से सबसे जरूरी 2 परहेज हैं, सबसे जरूरी। और आज उन 2 परहेजों में से एक की दास बात करने जा रहा है, जो बहुत जरूरी है साथ संगत जी। फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। अगर तू अपने आप को अकल वाला समझता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, समझदार समझता है, तो काले लेख मत लिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका भाव, हर इंसान हर समय कुछ ना कुछ लिख रहा है साथ संगत जी, इस बात को समझ लेना। हम चाहे कुछ करें या ना करें, अगर हम सो भी रहे हैं तो लिखा जा रहा है कि हम सो रहे हैं, बैठे हैं तो लिखा जा रहा है। चित्र के ऊपर एक एक चीज लिखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर इंसान हर सेकंड कुछ ना कुछ लिख रहा है। अगर गलत सोच रहा है तो गलत लिखा जा रहा है, सही सोच रहा है तो सही लिखा जा रहा है। हर इंसान लिख रहा है हर सेकंड। फरीद जी कहते हैं, अगर तुझे इतनी समझ है, समझदार कहलाता है अपने आप को, तो ऐसे लेख मत लिख जिसकी वजह से आखिर में तुझे पछताना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। काले लिख क्या है यहाँ पर? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जहाँ पर फरीद जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, एक्चुअली एक पंक्ति के कई अर्थ हैं, पर जो सबसे मेन अर्थ है यहाँ पर, काले लिख ना लेख। आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है दूसरों के अवगुण को देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरों के अवगुण को देखना, ये हमारे लिए बड़ी ही कॉमन बात है, इसमें हमें कोई हैरानी ही नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये काले लेख हैं, गुरु नानक पातशाह के वचन हैं, सारे महापुरुषों के वचन हैं। ये दूसरों के अवगुण देखने से वो अवगुण तुझ में आने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अवगुण की तरफ हम उसकी बात करेंगे कि फलाने में ये अवगुण है, एक दिन आएगा वो अवगुण तुझ में आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काले लिख ना लेख। दूसरों के अवगुण मत देख, देखने हैं तो अपने अवगुण देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख। अपने भीतर झांक। दूसरे की पीठ दिखाई देती है, अपनी पीठ नहीं दिखाई देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये इतना बड़ा अवगुण गिना गया है, आगे पूरी घटनाएं पूरा विस्तार से इस पे विचार होगी कि कितना बड़ा अवगुण है ये, और ये क्या करता है, सारे करे कराए पर पानी फेर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये टॉपिक इसलिए जरूरी है साथ संगत जी, गुरु नानक मेहर करे, हमसे सेवा ले रहा है अमृत वेले की, नाम जपने की। अगर इन अवगुणों से हम बच गए, ज्ञान मिल गया, आज हासिल कर लिया और अपने जीवन में से ढाल लिया हमने, तो फिर जो बात पठान की बनी वो बात हमारी भी बन सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100% बन सकती है। हमारी प्रॉब्लम ये, हम परहेज नहीं करते, उल्टा नाम जपने के बाद तो अहंकार से भर जाते हैं कि हम दूसरों से ऊपर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए, गुरु तेग बहादुर साहब जी इसके बारे में समझाते हैं, बड़ी डिटेल में समझाते हैं। पहले बेस से शुरू करेंगे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी क्या कह रहे हैं, कि हमारी ये आदत पड़ती कहाँ से है, इसका सॉल्यूशन क्या है।
और ये करती क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब जी क्या कहते हैं। जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, 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 काले लिख ना जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नौवें गुरु नानक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। करणो हूँ तो सो ना कियो, करणो हूँ तो सो ना कियो, पर्यो लोभ के फंद नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध, अब क्यों रोवत अंध। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नौवें गुरु नानक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपनी वाणी में समझा रहे, करणो हो तो सो ना कियो। सिंपल है, जो करना था वो किया नहीं। करणो हो तो सो ना कियो, पर्यो लोभ के फंद। क्यों नहीं किया? क्योंकि मन लालच में डूबा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेस से दास शुरुआत कर रहे हैं, बेस कि हमारी बुराइयों का बेस क्या है। गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं, सारी बुराइयों की जो जड़ है श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं वो लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप लोगों को याद होगा 2-3 साल पहले टॉपिक लिया था लोभ के ऊपर, मेरा डिटेल टॉपिक था कि लोभ करता क्या है, लोभ पैदा कैसे होता है और लोभ का अंत कैसे होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करणो हो तो सो ना कियो, पर्यो लोभ के फंद। जो करना था वो किया नहीं, क्योंकि लोभ के बस में मन आ गया, मन लोभ में फंस गया। लोभ, इस पॉइंट को याद रखना। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। वो समा तेरे हाथ से चला गया, अब तेरे रोने का कोई फायदा नहीं, पश्चाताप करने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक समय रम रहे हो भाव, पूरा जीवन तूने बिता दिया गलत काम करते हुए, लोभ के चक्कर में। अब आखिर में बुढ़ेपे में रो रहा है, अब क्या फायदा, अब जवानी तो आएगी नहीं ना, बचपन आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से विचारना इस वाणी को, बड़े ध्यान से। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं, तेरे सारे पापों की जड़ है लोभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
लोभ के चक्कर में फंस के जो करना था वो नहीं किया, लोभ के चक्कर में जो करना था वो नहीं किया। अब समय निकल गया, अब रो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। जवाब में गुरु तेग बहादुर साहब जी ही समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहन मीत, नानक मूरत चितर जो, छाड़त नाहन पीत, नानक मूरत चितर जो, छाड़त नाहन पीत। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे, मन माया में रम रहे हो। ये मन माया के साथ रम गया है, मिक्स हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस प्रकार से मिल गया है कि अब अलग नहीं हो पा रहा। निकसत नाहिन मीत, उदाहरण दिया कैसे मिक्स हो गया है। नानक मूरत चितर जो, छाड़त नाहिन पीत। एक दीवार है, उसके ऊपर पेंटिंग टंगी हुई है। उस पेंटिंग को तो हम अलग कर सकते हैं, उतार दी पेंटिंग, पर अगर दीवार पर ही चित्र उकरा गया हो, उसे कैसे अलग करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तस्वीर दीवार पर टंगी हो वो अलग की जा सकती है, पर तस्वीर दीवार पर ही बनी हो तो कैसे अलग हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं, नानक मूरत चितर ज्यों छाड़त नाहिन पीत। पीत कहते हैं दीवार को। अब वो चित्र दीवार को छोड़ नहीं रहा। इसी प्रकार हमारा मन माया में इस प्रकार से डूब चुका है कि अब उसे छोड़ नहीं रहा। लालच का, लोभ का कारण ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना साथी। सब पापों की जड़ लोभ, लोभ की जड़ मोह। माया यहाँ पर मोह को कहा है, मोह। उसकी बात हर बार होती है, मोह। महापुरुष समझाया करते थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये जो लोभ बीच का है ना, काम क्रोध पहले लोभ बीच में आता है, मोह अहंकार बाद में आता है। इसने अपने आप को बीच में रख के चारों को पकड़ रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोभ ने इन चारों की सपोर्ट ले रखी है और इन चारों को सपोर्ट दे भी रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोह। लोभ कब पैदा होता है इंसान में? जब उसके अंदर मोह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजय पाओ दूजा लाया। ये माया क्या करती है? प्रभु को बुलाती है, मोह पैदा करती है, फिर भाव दूजा लगाया, फिर लोभ पैदा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोभ कारण मोह। मोह क्या कराता है? दास ने पहले भी कहा, कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, मोह कहता है कि मैं सब कुछ दूं, और गुरुमुख कहते हैं गुरु सब कुछ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब मोह पैदा हो जाता है, जितने भी आप इतिहास पढ़ेंगे, डाकू से ऋषि बने जो मोह के चक्कर में लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। पूछा गया, गौतम बुद्ध जी ने पूछ लिया, क्या बात है? इसका लेखा तो तुम्हें देना पड़ेगा, कर तुम अपने घर वालों के लिए रहे। गया घर में, सबको इस कथा पता है। वो कहने लगे, नहीं, अगर इसका लेखा देना पड़ेगा तो घर वाले मेरे साथ लेखा देंगे ना, क्योंकि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। वो कहने लगे, मैं इधर ही बैठा हूँ, पूछ के आ जा। मैं नहीं जाता, मैं भागता नहीं। घर चला गया। पहली बार ऐसी हर उसके साथ घटना वापरी। घर चला गया, घर वाली से कहता है कि मैं इतने लोगों का कत्ल कर रहा हूँ, जब मेरा लेखा होगा तो साथ में होगी ना।
वो कहने लगी आपका फर्ज है हमें खिलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें पालना पोसना तुम्हारा फर्ज है, जो तुम करोगे तुम्हें लेखा देना है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। पिता ने, माता ने, घरवाली ने, बच्चों ने, सब ने यही जवाब दिया तो हाथ से करवत छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीवन पलटी खा गया। किस लिए हो रहा था पाप? लोभ की लालच में कि इकट्ठा कर लूं। इकट्ठा किस लिए करूं? मोह, घर वालों के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप एक बात नोट करो, पॉइंट नोट करो। बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आते हैं यहाँ पर। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कोई विरला होगा जो सच्चा होगा कल युग में। कोई सच्चे विरले होते हैं जो माया से ऊपर उठे हुए होते हैं, धन पदार्थों से। पर ऐसे लोगों को आगे लगा के सारी दुनिया उन्हें बेचकर खाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चेहरा एक आगे रख देती है जिसकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो उसको मोह नहीं है, मोह नहीं तो वो धन इकट्ठा नहीं करेगा, लालच नहीं होगा। उसका चेहरा आगे कर दिया, पीछे सारे चोर बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई मिसालें हैं, देश का प्रधानमंत्री ले लो, किसी को भी ले लो आप, ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें लोग आगे कर देते हैं। चाहे कोई संत हो, पीछे सब गलत काम होते हैं, आगे एक नेक चेहरा रख दिया जाता है, भाई ये इकट्ठा नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि लोभ का कारण मोह है। जब कोई है ही नहीं पालने वाला, वो इकट्ठा करके करेगा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर ना बड़ी गहराई से एक बात महापुरुष समझाया करते थे कि जब ये कहा गया ना आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख, इसका केवल एक पहलू नहीं कि अपने अवगुणों को देख। यहाँ पर एक और बहुत गहरी विचार है। आइए उसे समझने के लिए दो पंक्तियां पढ़ लें पहले। काले लिखना लेख, 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 काले लिखना लेख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तो हो गया आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख, कि दूसरों के अवगुण मत देख, अपने देख। और दूसरा महापुरुष समझाया करते इसके गहरे अर्थ। कहते थे दूसरों के पदार्थों की तरफ मत झांक, दूसरों के पदार्थों की तरफ मत झांक। मत देख के दूसरों के पास कितना है। अगर अपने से ऊपर वाले को देखेगा उसके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, तेरा मन में लालच पैदा होगी, लोभ पैदा होगा ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो अपने पास जो तेरे अंदर है, जो तुझे दिया है खुदा ने, उसे देखकर शुक्राना कर। शुक्राना तुझे लालच से, लोभ से बचा कर रखेगा। शुक्राना वो ढाल है जो लोभ के वार को रोक देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना। बाबा नंद सिंह जी के वचन आ गए ना। फिर अगर दुनिया में सुखी रहना है तो अपने से नीचे वाले को देखो, परमार्थ में सुखी रहना है तो अपने से आगे वाले को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर दुनिया में अपने से ऊपर वाले को देखा कि उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है, मन में लालच पैदा हो जाएगा। और अगर गुरुमुख है, वृत्ति भीतर ले गया कि मुझे गुरु ने कितना कुछ दिया है, वो कुछ दिया है जिसके लिए दूसरे तरसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन शुक्राने से भर जाएगा। अगर नियामतें गिनने बैठ गए जो हमारे पास हैं, शुक्राने से भर जाएगा। दास ने पहले भी कहा था, किसी भी पागल खाने में चले जाओ, किसी भी अंधे बच्चों के स्कूल में चले जाओ, ऐसी ऐसी जगह पे चल जाओ, हॉस्पिटल में चक्कर मारो, मन शुक्राने से भर जाता है। शुक्र है पातशाह, तूने आरोग्य देही बख्शी है, दिमाग सही बख्शा है। एक नस ही हिल जाए पागल खाने में उठा के डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
शुक्राने से भर जाता है आदमी जब लंगर बांटने जाता है और देखता है कि एक डोने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। कैसे न शुक्राने से भरेगा। हमारी मूर्खता यहाँ पर है कि हम दूसरों को देखने लग जाते हैं अपने से ऊपर कि उसके पास इतना है। फरीद जी कह रहे हैं अगर तू दूसरों को देखेगा तेरे मन में लोभ पैदा हो जाएगा, फिर तेरे लेख काले हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने गिरवान में सिर निवा कर देख, तू अपने देख कि गुरु ने तुझे कितनी नियामतें दी हैं। शुक्राना कर। शुक्राना वो ढाल है जो लोभ के वार को रोक देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ को जन्म ही नहीं लेने देती। शुक्राना वो अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब कुछ होते हुए भी जो इंसान दुखी है ना, समझ लेना उसके अंदर लोभ पैदा हो गया है। ये 100% श्योर है, 101%। हम अपने मन में ही झांके, जब दुखी होते हैं दूसरों को देखकर दुखी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पास है, मेरे पास नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मेरे पास भी होना चाहिए, लोभ जाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी यहाँ पर बड़ी प्यारी पंक्तियां कहती हैं, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। श्रवण कीजिए। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। ठंडा पानी पियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो, ना तरसाए जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीदार रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। भगत फरीद जी कह रहे रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पर आई चौपड़ी ना तरसाए जियो। इस पंक्तियों का भाव यही है। लोग इसके कई अर्थ निकालते हैं पर असल भाव यही है कि दूसरे की थाली में मत झांक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरे के थाली में झांकने वाला हमेशा दुखी ही रहता है, चाहे उसके पास सब कुछ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीदा देख पर आई चौपड़ी ना तरसाए जियो। दूसरे के पास क्या है वो देखकर अपने मन को मत तरसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो तेरे पास है, कम भी है, शुक्राना करके उसी में राजी रहे। उसी में राजी रहे तो सुखी रह सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि सारे पापों के जड़ लोभ कराता क्या है? दूसरे की बुराई। जब दूसरे के पास ज्यादा हो और हमारे पास कम, और जब हम उसे पा नहीं पाते फिर उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये टेंडेंसी है, ह्यूमन मेंटालिटी है ये। कोई गुण में हमसे आगे हो, अब वो आगे है, गुरु ने उसे आगे किया है। हमारे में उतना गुण नहीं, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते और देख देख के रोते रहें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर शुक्राना करे, पाशा तूने मुझे इतना दिया है, शुक्र है तेरा, मैं तो इस लायक भी नहीं, तो उसते चौगुन करे निहाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोभ से बच जाएंगे, काले लेख से बच जाएंगे। दूसरे की थाली, महापुरुषों के वचन है साथ संगत जी। ज्ञान है, लेना है तो ले लो। एक बड़ी अनमोल बात कहने जा रहे हैं दास, बहुत अनमोल बात कहते थे महापुरुष, साथ में खाओ पर एक थाली में कभी मत खाओ।
हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे ध्यान से समझना दास जो कहने जा रहा है। ज्ञान है, लेना चाहो तो ले लो, भोजन साथ में खाओ, थाली साथ में ना हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, इसका गहरा भाव समझ लेना कि हर रिश्ते में थोड़ी दूरी बनाए रखो, हर रिश्ते में थोड़ी दूरी बनाए रखो। रिश्ते टूटते वहां पर हैं जब थाली साथ में हो जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसको वैसे कोई कोई समझ पाएगा दास जो कहना चाहता है। अब ये हॉल बना हुआ है, समझो कहीं पर भी पिलर्स हैं, उसके पिलर्स दूर दूर होते हैं। अगर पिलर्स नजदीक बना दिए जाए ना तो छत गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ा फासला जरूरी होता है तब जाके छत रुकती है। दो पिलर्स के बीच में, दो स्तंभों के बीच में, खंभों के बीच में गैप चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो बात बीच में आ गई। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पर आई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। क्यों? अगर ऐसा ना किया तो क्या होगा? काले लेख हो जाएंगे। काले लिख ना लेख, 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 काले लिख ना लेख। जे तू अकल लतीफ, 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 काले लिख ना लेख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लालच में फंसा हुआ मन करता क्या है? अमृत वेले उठे, स्नान किया, नाम जपा, नितनेम बढ़ाया, सब कुछ किया, पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, निमय पंग पुयंगम साधे, पंच जनासो संग न छुटक्यो, अधिक अहुबुद बाधे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा कुछ करना किस लिए था? विनम्रता आ जाए। पर यहाँ पर आ गया अहंकार कि मैंने इतना कुछ किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उल्टा एक और लेकर बैठ गया, अहंकार एक्स्ट्रा आ गया। अब महापुरुष वचन किया करते थे, इंसान से गलती होती पता है कब है? जब उसके अंदर अहंकार आ जाए, उसके बिना गलती नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार में भरा हुआ आदमी से पता ही नहीं चलता कि वो गलत कर रहा है। एहसास होना बंद हो जाता है, जैसे सुन हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना ही अहंकारी आदमी को अपनी गलती दिखाई देती है और ना ही महसूस होती है करने के बाद भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक कि उसे ठोकर ना लग जाए, जब तक कि ठोकर ना लग जाए। पातशाह बानी में फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। मन तू मत
मत मान करे, जे हो किछ जानदा गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हो बुध है, सच शब्द मन को हो, सच शब्द मन को हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छा समझा रहे बाणी में कि मन तू मत मान करे, जे हों किछ जानदा। अगर गुरु ने तुझ पे तरस करके कृपा करके तुझे कोई गुण दिया है तो उसका मान मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या कर, गुरुमुख बन जा। गुरुमुख क्या करता है, निमाणा होकर रहता है। गुरुमुख निमाणा हो, झुक कर रहे। जिस पेड़ को फल लग जाए वो पेड़ झुक जाता है। ये निशानी है कि उसे फल लग गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर अज्ञान हो बुध है, सच शब्द मल खो हो। अब अंदर अज्ञान है, अहंकार है, हो अहंकार, अहंकार से भरी हुई बुद्धि है। अब इसे ठीक कैसे करें? सच शब्द मल खो हो, शब्द से इसे धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द तीर्थ का दर्जा रखता है। जो भी चीज जिस भी तरह से मन की मैल उतर जाए वो तीर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर अज्ञान हो बुध है, सच शब्द मल खो हो। आगे क्या कहते हैं पातशाह? हो निमाणा सतगुर अगे, मत किछ आप लखावहे। मत किछ आप लखावहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हो निमाणा सतगुर अगे। क्यों निमाणा हो जा? मत किछ आप लिखावे। बड़े ध्यान से समझना, ये पंक्ति बड़ी कीमती है। हो निमाणा सतगुर अगे, मत किछ आप लिखावे। गुरु के आगे निमाणा होकर बेनती कर। अपना आप जता मत कि मैंने इतने पाठ किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैंने इतने लोगों को जोड़ा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। नहीं, अगर तूने ये लिखा दिया, मत किछ आप लिखा दिए, लिखावे। अगर तूने ये लिखाया कि मैंने इतने नेक काम किए हैं, तो जो तूने गुनाह किए हैं उसकी फाइल भी खुल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तूने अपने नेक कामों की फाइल नहीं खुलवाई ना, कभी गिनाई नहीं, तो गुरु तेरे बुरे कर्मों की फाइल भी नहीं खोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो निमाणा सतगुर अज्ञे, मत किछ आप लिखावहे। अपने कभी भी मत जता कि मैंने ये नेक काम किया है। कभी भी मत, ये बुद्धि में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच भी है, और ये सच भी है साथ संगत जी। ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम कर रहे हैं, वो करवा रहा है तो हो रहा है। सिंपल सी बात है। गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहब जी की वाणी में से प्रमाणित करते हैं। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। अगर हम ये सोचे कि हम बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं, तो हमारे जैसा कोई मूर्ख नहीं। हमें हटाकर किसी को भी बिठा सकता है वो यहाँ पे, जिसे चाहे वो, चाहे गधे के सर पे हाथ रख के सेवा ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने छड़ी लगाई थी छज्जू जीवर के ऊपर। बचपन से गूंगा, बहरा, बोला, दिमाग से हिला हुआ पागल इंसान, सर पे छड़ी रखी, श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे अर्थ कर दिए जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहाँ से ज्ञान हासिल किया उसने? गुरु जिससे चाहे सेवा ले ले, जब तक विनम्रता है सेवा लेता रहेगा। जिस दिन अहंकार आया उठाकर साइड में कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए, डर के। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं। ये हमारे बड़े भाग हैं जो हमें सेवा मिली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत किछ आप लिखावे, मत लिखाना। आगे क्या कहते हैं पातशाह? क्यों नहीं लिखाना?
अपने अहंकार जगत जलिया, मत तू अपना आप गवावहे। अपने अहंकार जगत जलिया, मत तू अपना आप गवावहे। जब से बोलिए धन करना, धन गुरु नानक। इस अहंकार में ही सारा जगत जल रहा है। कहीं तू भी सारी दुनिया की तरह अपना किया हुआ सब गवा मत लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कुछ तूने सेवा करके हासिल किया, गुरु साहब ने तुझसे सेवा ली है, अगर तू अहंकार कर बैठा सब कुछ गवा बैठेगा, सब कुछ। तो क्या करें? सतगुर के पाण करे कार, सतगुर के पाण लाग रहो। यूं कहे नानक आप छठ, आप छठ, आप छठ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबियो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तो चलन मन रहे।
लागे वाजे अन तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता दिवस रात जुदाई जाय अकेले सजत जगे अमले आइया वाजे धर्म दूर कवियां को अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम आया वैर सत्कार नानके तुझे लेके दी छुट्टी नाल उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला नाम जपन दा वेला नाम जपन दा वेला गुਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत दूसरा जोदाई दाया खेले सरत जगत कगिया बुराइया वाच धर्म दूर करमिया को अपनी केड़े के दूर जिन्नी नाम पे आया गए काल नानक दिन तुझले कहते छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा सतगुरु दीन दयाल शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा हर वेले हर हाल शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा सतगुरु दीन दयाल शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा हर वेले हर हाल शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा पुत साने कृपा कीती मेरा दमी बरसाया पुत साने कृपा कीती मेरा दमी बरसाया सेवा सतसंग सिमरन बख्शिया चंगे पासे लाया हर दम नाल गुरु जी हो रख दे ख्याल गुरु जी जो लिखेगा पादे हो लगिया तोड़ निभा दे मैं वारी वारी जावा तो क्यों ना शुक्र मनावा हाँ हाँ शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा हर वेले हर हाल शुक्राना तेरा आहा शुक्राना तेरा हाँ हाँ शुक्राना तेरा सोना तू लजपाल गुरु जी हर दम लाज बचावे सोना तू लजपाल गुरु जी हर दम लाज बचावे लड़ लगिया दा मान बदावे सुते पाग जगावे हर दम नाल गुरु जी रख दे ख्याल गुरु जी जो लिखेगा पादे लगिया तोड़ निभा दे मैं वारी वारी जावा
क्यों ना शुक्र मनावा। हाँ हाँ शुक्राना तेरा, हाँ हाँ शुक्राना तेरा, हर वेले हर हाल शुक्राना तेरा, हाँ हाँ शुक्राना तेरा, हाँ हाँ शुक्राना तेरा। बस ये हो अरदास करा मैं साहिब सतगुरु प्यारे, बस ये हो अरदास करा मैं साहिब सतगुरु प्यारे। जीवे तो साडा हथ फड़िया सब नु दई सहारे, हर दम नाल गुरु जी ओ रख दे ख्याल गुरु जी, जो लिखे राह पा दे ओ लगिया तोड़ निभा दे। मैं वारी वारी जावा ते क्यों ना शुक्र मनावा। हाँ हाँ शुक्राना तेरा, हाँ हाँ शुक्राना तेरा, हर वेले हर हाल शुक्राना तेरा, हाँ हाँ शुक्राना तेरा, हाँ हाँ शुक्राना तेरा, हर वेले हर हाल शुक्राना तेरा, हाँ हाँ शुक्राना तेरा, हाँ हाँ शुक्राना तेरा, हाँ हाँ शुक्राना तेरा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।